Namaste everyone and welcome. Today we'll be covering another very important area as far as your preparation is concerned, which is the MBA personal interview questions and answers. I'm pretty sure that all of you understand this very clearly कि ये आपका last leg of preparation है. This is your final lap and you should take this part of your preparation very seriously. But generally I've seen students getting fitted into one of the two kinds. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कैट का स्कोर बहुत अच्छा है, एग्जिटी का स्कोर बहुत अच्छा है, जिनका एनमैट का रिटन का स्कोर बहुत अच्छा है, जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है. सो दे टेंड टू बिकम कॉम्प्लेसेंट एंड फील कि अब तो स्कोर अच्छा ही है, प्रोफाइल अच्छी है, तो कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाएगा, इंटरव्यूज के लिए ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है. एंड देन देयर आर अदर कैटेगरी ऑफ पीपल हु फील कि मेरा तो जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है, आई एम एट द एक्सट्रीम एंड और आई माइट बी द लास्ट पर्सन टू गेट कॉल्ड एंड देयरफॉर आई हैव वेरी ब्लीक चांसेस, मेरे चांसेस बहुत कम है फाइनल कन्वर्जन के, तो आई शुड नॉट टेक माई इंटरव्यू प्रिपरेशन वेरी सीरियसली. Either of the two cases, or if you are somewhere in the middle as well, please understand that interviews typically will be the deciding factor. आप अपने ड्रीम बी स्कूल में एडमिशन ले पाते हो या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन will be on the basis of the final interview that you will appear. And therefore, take this part very seriously. This session will help you understand not just the kind of common questions that come in the interview, but also how to respond. सो कैसा रिस्पॉन्स देना है, आपको रिएक्शन नहीं देनी है, रिस्पॉन्स देना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउ आर यू एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर. I'm not going to share answers for each one of you because everybody is unique. You are expected to have your own individual responses prepared, but I'm going to give you guidelines. I'm going to tell you the way you are expected to frame your answers. I'm going to tell you why they are asking certain category of questions. If you understand the root cause कि ऐसे questions पूछे ही क्यों जा रहे हैं, you will have no difficulty whatsoever in framing the right kind of response that is expected to be given. So start karte hain. This is the agenda. We'll cover broadly these aspects: why interviews, career related questions, questions on dress code, basic getup, walk in, and how to get seated. So start karte hain pehle part se, which is why. Why are interviews getting conducted? A lot of people feel, sir, उन्हें admission देना है limited number of students को, तो the best way to decide who to give admission to and who to reject is the interview stage, correct? But there are other important reasons that you need to understand. और important reasons क्या है, अगर वो हमें समझ में आ जाए, if you are able to understand this part clearly, कि interviews का primary reason is not just this part, uh, but there are other things that they want to take care of. तो वो क्या reasons हैं, वो हम इस डिस्कशन में क्विकली समझते हैं. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आप अपने रिस्पॉन्सेज बेटर तरीके से फ्रेम कर पाओगे. द फर्स्ट रीजन इज द राइट फिट. नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि कॉलेज की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे जब आप इंटरव्यू में अपियर करने जा रहे हो. दे आर वांटिंग यू टू बी अ राइट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स और प्रोग्राम. अ लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट फील दैट यू डोंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस. कई बार ऐसा होता है फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के डिस्कशंस में कि कहीं आप किसी जगह गए, यू मीट सम स्ट्रेंजर्स एंड यू रियलाइज दैट आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, ये मेरे टाइप का क्राउड नहीं है, मेरे टाइप के लोग नहीं है, आई एम फीलिंग अ सेंस ऑफ मिसफिट. तो जब ये वाली फीलिंग हमें नेचुरल सिचुएशंस में कई बार अदरवाइज आ जाती है, तो कॉलेज के सिनेरियो में तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट द कॉलेज शुड टेक ड्यू केयर टू अंडरस्टैंड कि आप राइट फिट हो फॉर द एनवायरमेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द नेक्स्ट 2 years. है ना? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है दैट आई एम गोइंग टू यूज. यू आर एक्सपेक्टेड टू बिलोंग टू द कॉलेज दैट यू आर ड्रीमिंग. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आप उस जगह बिलोंग करते हो, और आपका पूरा प्रोफाइल, अंडरस्टैंडिंग, फ्यूचर करियर गोल्स आर अलाइन टू दैट पार्ट सो दैट यू डोंट फाइंड योरसेल्फ टू बी अ मिसफिट देयर, then that is the right college for you, and that is exactly what they are expecting when you think of right fit. Think of it this way, that they have a particular offering. उनका एक 2 साल का करिकुलम है, 2 साल का मॉड्यूल है that they are offering as part of their MBA course, and you want to apply for that course. They want to check whether you will do justice to the 2 year program. 2 साल के प्रोग्राम में आप जस्टिस कर पाओगे क्या, अपनी एबिलिटीज को फुलफिल कर पाओगे, अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाओगे, विल यू बी एबल टू make the best use of the program that they have to offer and come out with flying colors. That is the idea. So one important reason is the right fit, कि क्या आप suitable हो, are you a suitable candidate. The second very important reason is a profile match. Understand this part, that close to 3 lakh odd people write CAT.
उतने लोगों का असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग तरीका होता है प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग। एसपी जैन इज फेमस टू गिव प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्ट। नाउ आई वांट यू टू थिंक ऑन योर ओन। सपोज किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, अमेजिंग प्रोफाइल है। कैसी प्रोफाइल है? लेट्स अज्यूम 10 सीजीपीए इन 10 स्टैंडर्ड, 10 सीजीपीए इन 12 स्टैंडर्ड एज वेल। 10th और 12th दोनों में 10 सीजीपीए। ग्रेजुएशन में 9.3 चल रहा है सीजीपीए। 9.3 सीजीपीए, 10 10 9.3। दैट पर्सन इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन द कॉलेज। ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर है, गोल्ड मेडल मिला हुआ है एकेडमिक्स के लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में नेशनल लेवल पे कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेला हुआ है, लेट्स से बैडमिंटन खेला हुआ है। तो इस तरह की टिपिकल प्रोफाइल में यू विल फील कि प्रोफाइल में तो अब कुछ बचा ही नहीं है। मतलब आप आइडियली जो भी कुछ सोच सकते थे वो सब कुछ करा हुआ है। इमेजिन ग्रेजुएशन आईआईटी से है, सो दैट ब्रांड इज ऑल्सो अटैच्ड कि आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, आईआईटी मुंबई से पास आउट है। सो व्हाट इज लेफ्ट? वो कैंडिडेट की प्रोफाइल में कमी क्या है? यू विल से कोई कमी नहीं है, परफेक्ट, अमेजिंग, ऑन डॉट, जैसा एक्सपेक्टेड है, आइडियल सिचुएशन वैसी की वैसी प्रोफाइल है। अब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। डू यू थिंक विदाउट मीटिंग that candidate in person, can the college authorities, the professors decide that he is the right fit? सीधे एडमिशन दे दे उसको आई एम अहमदाबाद में, सीधे एडमिशन दे दे उसे एक्सलरी जमशेदपुर में, सीधे एडमिशन दे दे किसी और एक्सवाईजी कॉलेज में। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है कि प्रोफाइल इज आइडियल, द अमेजिंग फीचर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इन अ प्रोफाइल, सारे प्रोफाइल के फीचर्स अवेलेबल है। क्या आप बिना मिले उस कैंडिडेट को डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हो? डू यू थिंक दैट कैंडिडेट वुड बी अ राइट फिट? इफ योर आंसर इज नो, देन थिंक कि आप और क्या एसेस करना चाहोगे इफ यू आर इन देयर पोजीशन। अगर आप कॉलेज अथॉरिटीज की पोजीशन में हो, आप प्रोफेसर्स के शूज में हो, सो इफ यू आर इन द प्रोफेसर शूज, व्हाट इज इट दैट यू विल वांट टू चेक एंड एसेस, राइट? आप क्या चेक करना चाहोगे, क्या एसेस करना चाहोगे? आई एम श्योर देयर आर फ्यू थिंग्स दैट विल कम टू योर माइंड, व्हिच इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। सर, इज दैट पर्सन कॉन्फिडेंट? What about communication skills? Does the person have necessary communication skills to be successful in the college life and beyond? Another important aspect which a lot of you might be able to think or might not be able to think is are his behavioral traits. कि उसका इन पर्सन बिहेवियर कैसा है? इज द पर्सन टू एरोगेंट? इज देयर अ चांस कि जिसके इतने अच्छे क्रेडेंशियल्स हो, ही माइट थिंक वेरी हाईली ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एंड समटाइम्स बॉर्डर ऑन बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट रादर बीइंग सुपर कॉन्फिडेंट। सो ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, क्या ये बिहेवियरल ट्रेट्स हो सकते हैं किसी हाई अचीवर में? देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट that person might have those attributes, and given that you are expected to be a team player during your MBA and beyond, you might not be able to reflect those qualities. You might say, sir, that person would be smart enough to hide those negative aspects in the interview stage. तो इंटरव्यू में भी हो सकता है कि वो हाइड कर पाए, झूठ बोल पाए, बिकॉज ही इज हाई अचीवर, ही नोज कि इंटरव्यू कन्वर्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो तब वो झूठ बोल दे। डजंट मैटर। कैन यू सिलेक्ट दैट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रोफाइल? नो, यू विल वांट टू असेस। सो हो सकता है असेसमेंट में कुछ ऐसी चीजें निकल के आए जब इन पर्सन इंटरव्यू होगा कि उस पर्सन की पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीजें हैं जो प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही। ऑल्सो इसको तो छोड़ते हैं प्रोफाइल का मैच, वी हैव अज्यूम्ड हाइपोथेटिकली कि आइडियल सिचुएशन है 10 सीजीपीए है 10th स्टैंडर्ड में, ग्रेजुएशन में 9.3 है। डू यू रियली थिंक कि अगर 10 सीजीपीए 10 12th में है और 9.3 सीजीपीए, तो गारंटी है कि उस पर्सन का सब्जेक्ट नॉलेज इन एकेडमिक्स वुड आल्सो बी इक्वली गुड? थिंक ऑफ इट दिस वे। आपने प्रोफाइल में देखा मार्कशीट्स में मार्क्स उतने अच्छे हैं, डज इट गारंटी कि उस पर्सन को उस सब्जेक्ट का नॉलेज भी उतना ही है दैट जस्टिफाइज द 10 सीजीपीए? ऑब्वियसली यू विल हैव क्वेश्चंस कि नहीं सर जरूरी नहीं है। क्या उल्टा भी पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल वाइस वर्सा, जहां पर एक्चुअल सीजीपीए 7.3 है बट पर्सन को सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा है उस पर्टिकुलर फील्ड का? तो व्हेन वी से प्रोफाइल मैच, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू असेस कि इफ यू हैव मेंशन्ड समथिंग इन योर प्रोफाइल, डू यू जस्टिफाई दैट इन द एक्चुअल इंटरव्यू? अगर आपने कुछ चीजें ऐसी मेंशन करी हैं जो दैट आर रेजिंग डाउट्स, आर यू एबल टू क्लियर दोज डाउट्स इन द इंटरव्यू स्टेज? So a lot of times when you look at some very good profiles, suddenly eyebrows are raised saying, wow, this is seriously awesome. This is seriously good. But when you interact with the candidate, you realize, नहीं नहीं, this was more like more hype and less value. तो दिखने में कुछ अलग है, और इन पर्सन कैंडिडेट या प्रोफाइल के बेसिस पे अगर हम असेसमेंट करें तो बहुत अच्छा है, बट इन पर्सन कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट दे वांट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मैच। और पूरी प्रोसेस में अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट द पैनल मेंबर्स में भी 3 4 5 एट बेस्ट, आई डोंट थिंक 5 से ज्यादा पैनल मेंबर्स कभी होंगे। मिनिमम 2 लोग तो होंगे ही होंगे हर एक इंटरव्यू स्टेज में। उनमें से एक पर्सन कम से कम would be the current professor who is going to teach you in the 2-year curriculum.
तो जब असेसमेंट होगा प्रोफाइल मैच के लिए, थिंक ऑफ इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि जो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे इंटरव्यू स्टेज में, दे आर गोइंग टू बी गिवन विद दिस पर्सपेक्टिव दैट डू यू डिजर्व अ सीट इन दैट प्रोफेसर्स क्लास इन द कमिंग 6 months 8 months। जब एमबीए करिकुलम स्टार्ट होगा, तब वो प्रोफेसर जब वो क्लास लेंगे, तब क्या आपको उनकी क्लास में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये माइंडसेट रहेगा प्रोफेसर्स का टू डिसाइड हाउ टू गिव मार्क्स। अगर उनको फील होता है कि यू विल बी अ वेरी सिंसियर सीरियस एस्पिरेंट जो बहुत ज्यादा सीखेगा और बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा फॉर द क्लास इटसेल्फ, देन दे माइट वांट टू गिव गुड मार्क्स। और उसके लिए जो भी क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे वो इस माइंडसेट से पूछे जाएंगे, वेदर यू डिजर्व अ सीट इन माय क्लास। तो प्रोफेसर्स का माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है कि कल को आई एम गोइंग टू टीच प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, और आई माइट टीच प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई माइट टीच एथिक्स, आई माइट टीच ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आई माइट टीच एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स टिपिकली इन द करिकुलम। बट जब मैं वो सब्जेक्ट की क्लास लेने जाऊंगा, लेट्स अज्यूम एन आई एम टिपिकली हैज अराउंड 400 odd स्टूडेंट्स, और अगर इनको 10 सेक्शंस में डिवाइड करा है तो 40 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन आर देयर। So when I'm going to go and interact with those 40 students in my class, do I want this candidate who's sitting right in front of me at this interview stage, should that candidate be a part of my class 6 months later? ये उनका benchmark है। So ultimately, your whole interaction should be with this objective that, sir, अभी तो we are meeting for just 5-10 minutes, but I definitely want to be a part of your class when you start your class 6 months 8 months later during the MBA curriculum। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये अगर क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि हो सकता है पैनल में से कोई एक मेंबर ऐसे हैं जो इस लेवल पे असेसमेंट कर रहे हैं कि कल को आपको वो सीट मिलनी चाहिए क्या 40 में से उस सेक्शन में जिस सेक्शन में मैं क्लास लेने जाने वाला हूँ। सो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओगे जिससे ये क्लैरिटी आ जाए दैट यू आर गोइंग टू डू वेल इन द 2 year करिकुलम, है ना। सो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाई इंटरव्यूज के, जो आपको समझना है। वन इज ऑब्वियसली द राइट फिट। कई बार होता है दैट वी आर इमेच्योर, वी हैव लैक ऑफ क्लैरिटी एंड देयरफॉर वी आर making decisions which are not in the right direction. So professors might want to advise you otherwise and say कि अभी एमबीए मत करो, आप बाहर से एमएस कर लो, आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, आप कुछ और कर लो लाइफ में, आप एमबीए मत करो। सो राइट फिट वाला एंगल आपके रिस्पॉन्सेज से वहां क्लियर होगा। और सेकंड, वेदर you are able to justify credentials that you mentioned in the profile, क्या वो आप justify कर पा रहे हो। तो this is the primary reason। आगे बढ़ते हैं। The next part is dress code। So dress code कैसा हो? Understand that this is a formal interaction that you are going to have with the panel members। सब कुछ चीजें बहुत formal level पे होने वाली हैं, and therefore questions like कि should I wear a formal shirt, a blazer or a tie, should my shoes be polished, etc etc, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद मिल जाएंगे अगर आप इस चीज को दिमाग में रख लो कि वो एक फॉर्मल इंटरेक्शन है और फॉर्मल इंटरेक्शन में यू आर एक्सपेक्टेड टू बी इन फॉर्मल्स। दैट्स इट। So I'm not going to spend a lot of time. The slide is in front of you. It is very detailed. So I think I'm not going to discuss in great detail about these aspects. But understand that formal shirt, formal trousers, formal tie, it should match with attire, and so on. ब्लेजर को लेकर एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर माय इंटरव्यूज आर गोइंग टू बी हेल्ड इन मार्च समटाइम इन अप्रैल, एंड इज इट रियली इंपॉर्टेंट कि हम ब्लेजर पहने या नहीं पहने। Understand, as long as whatever you are wearing is formal, if it's a formal shirt, formal trouser, that's also perfectly fine, कोई दिक्कत नहीं है। But if you are able to carry a blazer, if you are able to wear a blazer, typically at the interview center, I think every center would be air conditioned, so you will not have this trouble कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो कंफर्ट वाला इशू तो कभी भी नहीं आने वाला है। चैलेंज आने वाला है कि व्हाट इज प्रेफरेबल, क्या हम ब्लेजर कैरी करके ले जाएं या बिना ब्लेजर के इंटरव्यू में अपीयर करें। You will realize that almost every other participant, because of convention, is wearing a blazer. And if you don't wear a blazer, you might feel the odd one out कि यार सब लोग पहन के आए, मैं नहीं पहना हूं। तो then that should not be the case, and therefore I'll suggest, because majorly everybody will be in the blazer or a suit, you also should be preferably in a blazer or a suit। क्या आपको फॉर्मल टाई पहनना है? Yes। क्या आपको ब्लेजर पहनना है? Yes, preferably। बट एज आई सेड, क्या इंटरव्यू में रिजेक्शन हो जाएगा अगर हमने ब्लेजर नहीं पहना है? नो, दे आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट यू बिकॉज ऑफ द ब्लेजर दैट यू आर वेयरिंग। तो कितने का ब्लेजर है या कितने कॉस्ट का है या किस कलर का है विल नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर ऑब्वियसली कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाई पहनी है या नहीं पहनी, इससे सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं होना है। आपके क्रेडेंशियल्स, आपका इंटरेक्शन, आपका बिहेवियर, आपकी क्लैरिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, these are the things that are going to play a major role। But if your dressing sense is going to have an impact on all those factors,
कि सर आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मैं अकेला ही था जिसने ब्लेजर नहीं पहना था, टाई नहीं पहना था, तो इंटरव्यू के पहले ही थोड़ा सा नर्वस हो गया. इफ दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, देन स्टिक टू व्हाट इज मेंशन्ड ऑन द स्लाइड. मेक श्योर कि आप फॉर्मल शूज में जाएं, अप्रोप्रिएट सॉक्स पहने. ऑल्सो ऑलवेज कैरी अ पेन विथ यू. जब भी वो क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जहां पे यू माइट वांट टू स्क्रिबल और सॉल्व समथिंग ऑन अ नोटपैड, you might not be required to ask a pen because again क्या उससे सिलेक्शन, अगेन अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हर क्वेश्चन में हम ये डाउट ला सकते हैं कि क्या इससे सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा. सपोज मैं पेन नहीं ले गया और मुझे पैनल मेंबर से पेन रिक्वेस्ट करके मांगना पड़ा सॉल्व करने के लिए, तो क्या रिजेक्ट कर देंगे मुझे? नहीं. बट वो एक छोटा सा एस्पेक्ट रहेगा 5-10 सेकंड्स का विच विल हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर हेड कि यार मुझे पेन मांगना पड़ा, शिट आई शुड हैव ब्रॉट द पेन. दीज आर द काइंड ऑफ थॉट्स यू विल हैव इन योर हेड जो नहीं आने चाहिए. सेम इज द केस फॉर वुमेन. फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर्स. Is sari okay? Yes. Formal sari is okay. Indian formals are also fine. You can wear a suit. So all these points are mentioned here. Think of it this way: whatever you are wearing, it should be in the category or domain of being formal. Because when we say sari, so there can be 10 different kinds of saris in the Indian context, and you can have some very super fancy kind of saris, and you can have some formal category of saris as well. So when you talk of dressing sense, इतना presence of mind रखना है, common sense रखना है कि हम जो भी पहन रहे हैं वो बहुत formal sense में हो. हम कुछ ऐसी चीजें ना पहन के जाएं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स लगे. उसका रीजन भी I'll cover when we'll discuss more things. For example, suppose somebody goes in a jeans and t-shirt, तो क्या रिजेक्शन हो जाएगा? आइडियली तो नहीं. nobody is going to reject you कि आप जीन्स टी शर्ट में क्यों आए, बट अंडरस्टैंड दैट द पैनल माइट वांट टू क्वेश्चन कि आप जीन्स टी शर्ट में क्यों आए हैं. what is the reason? Because you're doing something which is not a convention. In a formal setup we don't expect anybody to be in a jeans and t-shirt. अब अगर वो इंटरेक्शन जीन्स टी शर्ट में हो जाएगा, आपके स्लीपर्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप पाथ से भटक रहे हो. आपका इंटरव्यू इस पार्ट पे होना चाहिए था कि वाई यू आर अ राइट फिट, और अभी डिस्कशन चल रहा है कि जीन्स क्यों पहनी है. यू वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड योर कैंडिडेचर बेटर बिकॉज ऑफ द क्लोथिंग दैट यू आर वेयरिंग, और उससे interview will go in a completely different direction, which is why you might get rejected, not just the pure reason. Imagine somebody is super good in terms of profile, communication, confidence, everything else, और सिर्फ जीन्स टी शर्ट का ही एक इशू है, तो रिजेक्शन नहीं होगा. They might obviously ask, but if you have a solid reason कि why you came in a jeans, then you will be able to justify and then understand. But generally इतनी रिस्क किसी को नहीं लेनी चाहिए. जब स्टार्ट ही इस रीजन से होगा, they'll want to assess you for your other things. स्टार्ट गलत डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इट इज टिपिकली सेड वेल बिगन इज हाफ डन. आपका स्टार्ट गलत है तो इट विल क्रिएट अ वेरी रॉन्ग फाइनल इंप्रेशन एज वेल, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स. बिलीव मी, पहला इंप्रेशन जो आप क्रिएट करोगे वो आपके ड्रेसिंग सेंस से होगा जब आप पहली बार एंटर कर रहे हो. इनफैक्ट आपका पहला इंप्रेशन तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. एज आई टिपिकली लाइक टू से दैट यू वुड हैव फिल्ड सर्टेन फॉर्म्स. कॉलेज के फॉर्म्स आपने भरे होंगे. कॉलेज के फॉर्म्स में जो भी अपनी डिटेल्स भरी है, तो बिफोर यू इवन एंटर आपका फर्स्ट इंप्रेशन तो वहां क्रिएटेड है. अब यहाँ पर जब आप एंटर करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड इंप्रेशन, एंड दे वुड हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम इमेज, सम बैकग्राउंड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वुड बी बिफोर यू इवन एंटर. तो ये वाले पार्ट्स पे हम आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली. देन लेट्स कम टू द बेसिक गेटअप. व्हेन वी टॉक ऑफ बेसिक गेटअप, प्लीज मेक श्योर दैट योर हेयर इज नीटली डन. You should have a fresh shave if possible, and if you want to keep a beard or mustache, it should be well trimmed, है ना? तो well trimmed होना चाहिए. Again, you might have a question क्यों? Because it's a formal interaction and you should look formal. Plus, it should not have any negative consequences on your own mind. कि यार, I forgot to shave. I'm generally clean shaven, but आज मैं भूल गया और आज ही इंटरव्यू है, तो it will create unnecessary nervousness. तो ये चीज बहुत बेसिक लेवल की है, not going to have a major impact on these things. बट अगर आप ऑल्सो टॉक अबाउट इंटेंशन, स्पोर्ट्स में कई बार बोला जाता है यू शुड हैव द राइट इंटेंट, है ना? इंटेंट बहुत फ्रीक्वेंटली टर्म यूज किया जाता है. हाउ डू यू मेजर समबडीज इंटेंट? जब आप क्रिकेट फील्ड की बात करते हो, तो जब फील्डिंग टीम जा रही है, तो इज इट कमिंग ऑन विद अ लॉट ऑफ इंटेंट, विद रनिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा, या बहुत लेड बैक धीरे धीरे चल के टीम आ रही है? तो जब आप इंटेंट की बात करते हो, इंटेंट किन चीजों से शो हो रहा है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है योर बेसिक गेटअप. तो आपका राइट इंटेंट शो होगा फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ इफ यू आर वेल मेंटेन. आगे बढ़ते हैं. नो लॉन्ग एंड अनकेम्प्ड नेल्स, बेयर मिनिमम. इमेजिन यू विल बी यूजिंग योर हैंड्स और आपके नेल्स अलग अलग दिख रहे हैं. नेल पे नेल पेंट ना हो तो अच्छा, बिकॉज इट माइट गिव राइज टू अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर यू वेयरिंग नेल पेंट? एंड कैन बी फॉर गाइज एंड गर्ल्स, बिकॉज in today's age you don't have any gender biases with regards to fashion as well. So irrespective of whether you're a guy or girl or any other gender, understand ki nails
पे पेंट ना हो, बिकॉज देन इट माइट गिव राइज टू अनदर क्वेश्चन कि वाई आर यू वियरिंग नेल पेंट, एंड देन अगेन अलग डायरेक्शन में चले जाएगा. नॉट समथिंग दैट यूल वांट टू प्रेफर. क्लीन एंड वेल पॉलिश शूज मस्ट मेक श्योर दैट अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू है तो आपका एंटायर गेटअप फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड स्पीक फॉर्मल बिहेवियर. ठीक. No loud colors. Again, think of it this way: there is no guideline what would be categorized as a loud color or a very funky color. But understand light shade shirts and dark colored trousers are good enough for you to understand कि what would be considered formal. But अगर आप bright red color का, bright orange color का shirt पहन के जाएंगे, तो they might want to ask this question: is orange your favorite color? Is red your favorite color? And again, the interview might get diverted in a different direction. ठीक. So बढ़ते हैं आगे. Basic getup is done. Finally, empty pockets. A lot of people are understanding of this part कि आपका basic getup कैसा होना चाहिए. But sometimes we tend to miss things कि pockets में बहुत सारा कुछ कुछ filled है, coins की आवाज आ रही है. ऐसी basic चीजें avoid करें. Again, not a deciding factor. I'll quickly move on to the next part, which is perfume. So understand, a lot of people have this habit of using deodorants or perfumes which are very strong, which are so strong. I mean, there is no harm in wearing a perfume. The only issue is कि it should not give headaches to the panel members. And I have sat in interviews जहाँ पर candidates इस तरह का strong perfume लगा के आए हैं कि it is difficult to sit for the next 10-15 minutes. Forget focusing on the candidature. तो बोलना पड़ा है कि we might take your interview 2 hours later because currently it is impossible for me to sit in the same room with you because it is giving me headache. तो very light perfume, if at all, minimal perfume is expected. Walk in and getting seated. अब जब हम इंटरव्यू स्टेज में, ऑफलाइन इंटरव्यू में, इंटरव्यू रूम में एंटर करने की बात करते हैं, सो हाउ आर यू सपोज टू वॉक इन एंड गेट सीटेड, इस वाले पार्ट पे आते हैं. इसमें पहला पार्ट है परमिशन प्लस आई कॉन्टैक्ट. सो यू विल जेंटली नॉक ऑन द डोर. आप जेंटली नॉक करोगे एंड देन यू विल इन अ वेरी कॉन्फिडेंट असर्टिव वॉइस आस्क, प्लीज मे आई गेट इन. है ना. सो स्टैंडर्ड फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है. Once you ask for permission, please make sure that you try and maintain eye contact. They might look at you and say, please come in. And then you are expected to enter. If they don't hear you, yeah, if they don't respond, then what will you do? You'll wait. Maybe in 5-10 seconds, they're going to respond. If they don't respond even then you'll again knock on the door, open the door slightly, look at them, and ask for permission to get in. I'm pretty sure this time around they'll acknowledge and ask get in, or they'll ask you to wait for 5 more minutes. Nothing wrong there. उसमें हर्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने तो मना कर दिया, जबकि बाहर जो पर्सन थे उन्होंने बोला था कि अब आप जा सकते हो, मैं परमिशन लेके जा रहा था, उन्होंने मना कर दिया. इट्स ओके. दे माइट बी गिविंग मार्क्स टू द प्रीवियस कैंडिडेट, दे माइट बी डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स अमंग themselves, they might be reviewing your form before you enter. So one of the panel members might not be ready for you to be seated. So it's perfectly fine. They are minding their own business. उन्होंने अगर मना कर दिया तो हम बहुत आराम से politely without having any ill feelings will wait. Correct. And then once they ask us to enter, then we'll go and remain standing. So क्या ये बहुत स्लैविक एटीट्यूड है कि हम खड़े क्यों रहें, वो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक क्या हम बैठ नहीं सकते हैं? Don't have those kind of notions. Understand that they might be still in the process of writing final marks. They don't want you to look too much into what they are doing at this point in time. Although they have called you inside, they might still want कि अभी एकदम से आप नहीं भी बैठो तो चल जाएगा. There is no harm in waiting for 10-20 seconds. कि बैठने के बाद हो सकता है that you might be able to look at some of the things that they are doing which they are not comfortable at this point in time, so they might not ask you to sit straight away. So there is no harm. आप उनके perspective से सोचो कि वो ऐसा attitude लेके नहीं चल रहे हैं that they are the masters and you are slave, और जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक हमको बैठना है. There is no that kind of a mentality that is working here, neither here nor during the MBA nor during the time that you will be in the corporate sector. So ऐसा कुछ mindset नहीं है. It's just that they are in a position where they are carrying their own business. You are there to get a particular seat. Both are doing their job independently, and it's important that to be able to do their job in a well dignified manner, they might want you to remain standing for few seconds. That is perfectly fine. तो ये जो लॉजिक है ना, ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं बोला है कि खड़े रहने दिया. खड़े रहने दिया, इट्स ओके. दे माइट स्टिल वांट टू असेस कि हाउ डू यू रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट करते हो अगर आपको एकदम से बैठने को नहीं बोला. दिस माइट बी अ पार्ट ऑफ द वे दे माइट वांट टू असेस यू. यू डोंट नो एनीथिंग, सो देन यू विल रिमेन स्टैंडिंग. अगर वो कुछ टाइम तक जनरली होगा दैट वन ऑफ द पैनल मेंबर्स विल से दैट प्लीज हैव अ सिट. है ना. तो जब भी आपको वो बोलेंगे प्लीज हैव अ सिट, तो यू कैन
गेट सीटेड ऑब्वियसली अगर वो नहीं बोलते हैं कैन यू आस्क यस, इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू आस्क प्लीज मैं सिट एंड देन यू कैन गेट सीटेड, तो पूछने में भी कोई बुराई नहीं है। जब आप ग्रीटिंग करोगे, जब आप एंटर कर रहे हो और जब आप ग्रीटिंग करोगे, तो इट इज परफेक्टली फाइन टू ग्रीट एवरीवन इन वन गो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ऑब्वियसली विल नेवर से गुड नाइट। तो हम इंटरव्यू में कभी भी गुड नाइट नहीं बोलेंगे बिकॉज दैट इज नॉट द कन्वेंशन। गुड इवनिंग इज द टिपिकल वे, इवन इफ योर इंटरव्यू इज एट 8 o'clock in the night, you'll not say good night, you'll say good evening everyone. So in one go में आप greetings दे दो। There is no particular reason to say if there is one female panel member and there are two male panel members, so आप पहले female को greet करेंगे and बोलेंगे good morning ma'am and you'll greet good morning sirs to the remaining two panel members। ऐसा कुछ order का significance नहीं है and therefore I'll suggest कि it should be very neutral, say good morning all, good morning everyone, that's perfectly fine। Once you get seated, permission और eye contact वाला part हो गया है। Please try and make sure that you maintain regular eye contact with the panel members but you don't stare, है ना? तो आपको stare भी नहीं करना है but ऐसा भी नहीं करना है that you're looking down। What about the gait and greeting? I've already shared। When you walk, make sure that you have a very confident walk। इसको ऐसे लेके चलते हैं, सर हर लेवल पे जजमेंट हो रहा है क्या? तो आंसर इज यस, दे आर देयर टू जज यू, है ना? आप उनका पर्पज ही है कि वो आपको जज करे और हर लेवल पे जज करें। इट्स अ पर्सनल इंटरव्यू, दे आर गोइंग टू जज यू एट अ वेरी पर्सनल लेवल टू मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड दैट यू आर अ राइट फिट फॉर दिस प्रोग्राम। तो आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, ऑल दिस थिंग्स आर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली गोइंग टू क्रिएट एन इंप्रेशन इन देयर हेड। और इसलिए जब आप चल रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट वे ऑफ वॉकिंग, कॉन्फिडेंट वे ऑफ ग्रीटिंग एंड सो ऑन स्टफ। सो जब आप बोलेंगे तब आपकी टोन, लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये चीजें बहुत मैटर करेगी। तो आप कॉन्फिडेंस से चलें, कोई हेजिटेशन ना रखें। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड you should be displaying your best confident self। तो गेट एंड ग्रीटिंग वाला पार्ट इज डन। पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर द जनरेशन दैट यू बिलोंग टू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे इन द राइट पोस्टर। सो सपोज आई एम सिटिंग, सो करेंटली माई स्पाइन शुड बी इरेक्ट, इट शुड बी स्ट्रेट। बहुत सारे लोग, एंड यू वुड हैव रियलाइज, इनफैक्ट शायद ये वीडियो देखते टाइम भी यू माइट बी वाचिंग दिस वीडियो बाय लाइंग ऑन योर बेड। आप बेड पे लेटे हुए शायद ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप चेयर पे भी बैठे हो तो हो सकता है कि यू माइट बी लाउंजिंग बैकवर्ड्स, आप पूरा लाउंज करके फोन सामने रख के या लैपटॉप सामने रख के देख रहे होंगे। सो दीज आर द हैबिट्स दैट वी हैव गॉट आवरसेल्व्स इनटू एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इज एन एक्सेप्शन हियर। हर कोई इसी माइंडसेट में वीडियोस अटेंड करता है, देखता है। बट जब आप इंटरव्यू स्टेज में जाओगे तब लॉट ऑफ पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ सिटिंग इन अ क्रुकेड मैनर। आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, आप क्रुकेड मैनर में बैठते हैं, योर स्पाइन इज नॉट इरेक्ट, इट इज हैविंग एन आर्च। तो ये चीजें अवॉइड करें। वाई? अब एक क्वेश्चन आता है, सर इतने डिटेल में हम क्यों जा रहे हैं? वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज योर पोस्टर will talk a lot about your intensity, your focus, your ability to concentrate, your intentions or interest with regards to the process that you are a part of। और ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज से, विच इज पोस्टर। इमेजिन यू आर सिटिंग इरेक्ट, तो आपका एक अलग बॉडी लैंग्वेज का मैसेज जा रहा है। एंड इफ यू आर सिटिंग इन अ वेरी रिलैक्स लेड बैक मैनर, यस सर आई वांट टू जॉइन योर कॉलेज, एंड देन यू आर स्पीकिंग अबाउट, तो एक अलग लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है। और अगर आपका पोस्टर इरेक्ट है तो वो इंटेंसिटी सही डायरेक्शन में रहेगी, आपका फोकस सही रहेगा, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन ओवरऑल बेटर होगा इस एक पर्टिकुलर फीचर से। और बिलीव मी, 9 out of 10 कैंडिडेट्स हैव रॉन्ग पोस्टर। अच्छा, व्हाट अबाउट हैंड्स? बहुत लोगों को डाउट लगता है कि सर टेबल है हमारे सामने तो हैंड कहाँ, टेबल पे रख सकते हैं क्या? व्हाट अबाउट फोल्डर? तो फोल्डर क्या हम टेबल पे रख सकते हैं? जनरली इट इज एडवाइजेबल दैट यू कीप फोल्डर ऑन योर लैप। फोल्डर टेबल पे नहीं रखेंगे। इफ दे आस्क यू फॉर द फोल्डर यू विल प्रेजेंट द फोल्डर, बट फोल्डर आप अपनी लैप पे रखेंगे। योर हैंड्स विल ऑल्सो बी ऑन योर थाइज, तो आपके हैंड्स विल बी ऑन योर थाइज। सो लेट सपोज दिस इज योर सिटिंग पोजिशन, आपके हैंड्स थाइज पे हैं एंड देन यू कैन यूज योर हैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। Obviously, your hand movements should also not be too exaggerated like this, like that, because it's a formal interaction. Some very senior people are sitting in front of you. So your expectation in terms of body language and hand movements have to be restricted to one hand to the right and one hand to the left. That's it. इसके beyond आप hand movements करके अपना body language show करोगे। Hands on thighs, folder on your lap, है ना? जनरली इट इज सेड द टेबल बिलोंग्स टू द इंटरव्यू पैनल, तो टेबल उनका है। इफ दे आस्क फॉर द फोल्डर यू माइट पोलाइटली प्रेजेंट इट टू देम, बट आपका हैंड मूवमेंट्स फ्री होना चाहिए। ऑब्वियसली प्लीज डोंट पॉइंटेड फिंगर्स। लॉट ऑफ पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ व्हेन दे थिंक दे लुक अप एट द सीलिंग, some people have this habit of looking at the floor, some people have this habit of
try and appear for few mock interviews and understand कि what is the typical mannerism, है ना? इसके लिए एक इंग्लिश में टर्म होता है idiosyncrasy. So some people have this typical habit or idiosyncrasy कि वो अपने they are playing around with their hands and you know पेन है उनके हाथ में तो they'll just flip around the pen. ये कुछ टिपिकल मैनरिज्म्स हैं जो फॉर्मल बिहेवियर के अंदर नहीं आते, स्पेशली इन द इंटरव्यू स्टेज. प्लीज मेक श्योर कि आप इस फॉर्मल बिहेवियर को फॉलो करें. तो पोस्टर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्लीज टेक ड्यू केयर ऑफ इट. फोल्डर, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कैरी फोल्डर? यस. अब फोल्डर की डिटेल्स में भी हम थोड़ा सा चले जाते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक टिपिकल एमबीए एंट्रेंस इंटरव्यू में फोल्डर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स किस ऑर्डर में होने चाहिए, पर्पस क्या है फोल्डर का. सो फोल्डर टिपिकली इट शुड बी अ फॉर्मल फोल्डर, और उसके स्टार्टिंग में आई थिंक फ्रंट पे बिफोर यू इवन ओपन द फोल्डर आई थिंक स्टिकर्स की पोजीशन रहती है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, मेक श्योर कि आपका स्टिकर भी फॉर्मल हो. आई हैव हैड कैंडिडेट्स इन द एक्चुअल इंटरव्यू सिनेरियो जिनका फोल्डर का स्टिकर रणवीर सिंह का था विदाउट टू मेनी क्लोथ्स ऑन हिमसेल्फ. सो रणवीर सिंह का स्टिकर था, फोल्डर पैनल ने स्टार्टिंग में मांगा, और बिलीव मी उसका इंटरव्यू कैंडिडेट का रणवीर सिंह के ऊपर हुआ फॉर द फर्स्ट 3-4 minutes. They straight away asked, tell us 5 good qualities about Ranveer Singh without clothes. That was the first question asked. तो रणवीर सिंह की 5 क्वालिटीज. नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट you'll want to discuss in the interview, right? आप इस माइंडसेट से, एंड आउट ऑफ नोवेयर द कैंडिडेट इज पजल्ड कि आई हैड नो आइडिया. मुझे पहले 2-3 मिनट तो समझ में नहीं आया कि मुझसे ये क्यों पूछा जा रहा है. एंड देन फाइनली आई हैड अ लुक एट द फोल्डर एंड आई रियलाइज कि अच्छा, फोल्डर का स्टिकर जो है उस पर रणवीर सिंह का फोटो है, एंड आई एम गेटिंग आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दीज लाइंस. सो अगेन, क्या इससे रिजेक्शन हो जाएगा? नहीं. बट अंडरस्टैंड, आपका 10-15 मिनट का छोटा सा इंटरेक्शन है, उसमें आप किन चीजों पे फोकस करना चाहोगे? रणवीर सिंह या योर क्वालिटीज, हॉबीज, इंटरेस्ट, करियर ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक्स, एंड व्हाई यू आर अ राइट फिट? ऑब्वियसली यू नो द आंसर, सो इट्स अ नो ब्रेनर. बट देन अंडरस्टैंड कि आपका फोल्डर, अगर आप स्टिकर चला रहे हैं तो वो भी फॉर्मल हो. जो फोल्डर ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड का एरिया रहेगा, वहां पे यू कैन कीप योर पेन, स्कोर कार्ड्स एक्सेट्रा, एनक्लोजमेंट्स रहते हैं जहां पर आप चीजें पुट कर सकते हो. व्हेन यू ओपन योर फोल्डर, इमीडिएटली जो आपका फ्रंट पेज है, अगर आपका एक पेज का सीवी है, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू शुड हैव स्ट्रिक्टली 1 पेजर सीवी अवेलेबल विथ यू. बट इन केस योर वर्क एक्सपीरियंस एंड टू elaborate on those work experiences, you have a 2-page CV, that's also fine, but definitely not beyond 2 pages. तो सीवी को लेकर एक अलग से सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच दैट. बट अभी इस पे आते हैं. तो 1 पेजर सीवी, इमीडिएटली फोल्डर ओपन करने के बाद आपका 1 पेज का सीवी दिख जाए. अगर आपका 2 पेज का सीवी हो तो फ्रंट पेज, जैसे ही आपने फाइल ओपन करी, इसमें जो पहला पेज दिखेगा टू द राइट, उस पे मेक श्योर दैट यू हैव सम हेडिंग, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, योर नेम, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा. और जब फ्लिप करें, सो व्हेन यू विल फ्लिप, तो जब आपका फोल्डर ओपन हो गया, फोल्डर ओपन होने के बाद आप पहले पेज पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर हेडिंग डाल चुके हो, जब फ्लिप कर रहे हो तो नाउ यू हैव गॉट 2 लीव्स इन फ्रंट ऑफ यू. इस लीफ और इस लीफ पे 2 पेज का आपका सीवी आ सकता है. अगर 1 पेज का सीवी है तो स्टार्टिंग में ही आ जाए फ्रंट पेज पे. अगर 2 पेज का सीवी है तो लीफ, बिकॉज द आइडिया है कि जब पैनल मेंबर्स ओपन करें तो उनको पेज स्क्रॉल ना करना पड़े पूरा सीवी पढ़ने के लिए. दैट्स द आइडिया. तो जब वो ओपन करें तो आपके दोनों पेजेस एक बार में दिख जाएं. दे शुड बी एबल टू रीड एवरीथिंग दैट यू मेंशन इन अ सीवी इन वन ग्लांस. ठीक है. इसके बाद रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपने मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, स्टार्टिंग विथ वर्क एक्सपीरियंस. इफ योर वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स लगाने के बाद यू विल पुट योर मार्कशीट्स इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब अगर लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आ गई है तो वो, डिग्री का सर्टिफिकेट है तो वो, एंड देन सारी रिमेनिंग मार्कशीट. देन यू विल हैव 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, एंड सो ऑन. उसके बाद आप अचीवमेंट्स पुट करेंगे. अचीवमेंट्स वुड टिपिकली मीन वेयर यू हैव वन समथिंग, कुछ जीता है आपने, दैट इज कैटेगराइज्ड एज एन अचीवमेंट इन अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. जो आपको लगता है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो आप डाल दो. फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, एंड सो ऑन. पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स भी पुट कर सकते हो एट द एंड. एंड देन फाइनली मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स, योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर XYZ डॉक्यूमेंट्स, वो आप उनकी फोटोकॉपीज या बाकी कुछ चीजें, फॉर्म की डिटेल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिक्विजिट्स हैं, एडमिट कार्ड्स हैं, वो आप बैकएंड पे रख सकते हो. सो दिस इज टिपिकली द ऑर्डर दैट आई वांट यू टू फॉलो व्हेन इट कम्स टू फोल्डर. तो फोल्डर में इस चीज का ध्यान रखना है. हैंड मूवमेंट्स एंड बॉडी लैंग्वेज, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. It should not be your hand movements and body language should not be too abrupt. They should be in a very polite, well behaved, on the expected lines वाला manner, जो कि एक formal interaction के लिए जरूरी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The next part that we'll take up in this regard is with regards to career. So बहुत important part है questions on career. So career related किस तरह के questions आ सकते हैं उसको देख लेते हैं.
और इस पार्ट में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि करियर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ही क्यों रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए और किस तरह के आंसर्स हम फ्रेम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म करियर गोल से। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट dreaded questions, एंड आई एक्सप्लेन हाउ टू फ्रेम योर रिस्पॉन्स फॉर दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन एज वेल। बट एक बहुत ट्रेडेड क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म करियर गोल, व्हाट इज योर मीडियम टर्म करियर गोल, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म करियर गोल। आई एम श्योर कि आपने अपने फॉर्म्स में ऑलरेडी आंसर फिल कर दिया है। वी had also recorded some very interesting videos to give you insights कि इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह के आंसर्स भरने हैं। बट नाउ इज द स्टेज जहाँ पे डिटेल डिस्कशन होना है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू इनपुट्स कि हम प्रिपेयर कैसे करें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, और क्या सही है क्या नहीं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू हैव इज मेक श्योर दैट यू डोंट बिलीव एनी एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मी ऑन द फेस ऑफ इट। किसी भी एक्सपर्ट ने बोल दिया है कि ऐसा करना रहता है इसलिए आप वैसा करो, ऐसा प्लीज मत करना। यू हैव क्लियर्ड अ वेरी वेरी टफ एग्जाम, कैट, एग्जिटी, एनमैट, स्नैप, कोई ना कोई एग्जाम आपने खुद से निकाली है। यू आर एटलीस्ट 20 years old. Government allows you to vote, decide on what is going to happen in the country. I strongly feel that you are matured enough to take your own decisions. तो अगर कोई भी एक्सपर्ट इंक्लूडिंग मी आपको कोई भी रीजन या कोई भी एडवाइस दे रहे हैं तो उसे ब्लाइंडली मत फॉलो करो। Understand the logic behind, understand the rationale behind why somebody is saying a certain thing, and then take your own call. Because in this area, जहां पर कहीं रूल्स नहीं है, everybody is free to give their own opinion, especially people who are recent pass outs from top B schools, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अभी लास्ट ईयर किसी ने IIM से पास आउट हुआ है एंड ही फील्स कि ही इज गुड इनफ टू गाइड पीपल। नथिंग रॉन्ग इन बिलीविंग सो, बट नॉट एवरीबडी माइट बी एन एक्सपर्ट और इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू गाइड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रीसेंट पास आउट्स हैं उनका कई बार एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, और उनका एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड भी है खुद के इंटरव्यूज और अपने फ्रेंड्स के इंटरव्यूज का। प्लस एमबीए हो गया है तो दे फील कि जो उन्होंने करा शायद वो सही था। देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। व्हेन समबडी सेज कि ऐसा करना चाहिए और रिसेंट पास आउट है, हो सकता है कि उसने अपने इंटरव्यू में वो करा और सिलेक्शन हो गया, डज नॉट मीन कि उस कारण से सिलेक्शन हो गया, है ना। तो हो सकता है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट अ पर्सन डिड एक्स वाई जी थिंग उसके बावजूद सिलेक्शन हो गया, ये पॉसिबिलिटी है। बट देर इज नो वे टू अंडरस्टैंड। So when you have someone who has 8, 10, 12 years of experience guiding students, taking feedback from them, understanding, being in the panel of actual interviews, or having friends or alumni from the same college who are a part of the interview process, understanding the back end, table के इस तरफ क्या हो रहा है, table के उस तरफ क्या हो रहा है, when you have people of that sort of a background, it makes more reason for you to believe them. I'm not saying believe me, I'm saying understand the reasons why some expert is claiming something कि ऐसा करना सेंसिबल है। तो सेम चीज इसके लिए। अब लॉन्ग टर्म गोल पे कॉमन क्वेश्चन आता है, सर मुझे तो कल का नहीं पता कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, एंड दे आर गोइंग टू आस्क मी व्हाट इज माय लॉन्ग टर्म करियर गोल, 15 साल बाद मैं क्या करने वाला हूँ, हाउ एम आई सपोज टू आंसर। एंड टिपिकली आई बिलीव दैट यू शुड बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। जितना ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रह सकते हो उतना आपको ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। तो आपको बहुत ऑनेस्ट आंसर देना है कि 15 साल बाद आप क्या करोगे, 20 साल बाद आपका लाइफ में करियर गोल क्या है। नाउ व्हेन यू आर प्रेजेंटेड विद सच अ क्वेश्चन, as some of you might think, sir I'm not clear what is it that I'm going to do tomorrow, तो मैं 15 साल का आंसर कैसे करूं, झूठ तो बोलना नहीं है, अभी आपने बोला तो फिर मैं ये कैसे बोलूं कि मुझे क्लैरिटी नहीं है। और आई नो कि अगर मैंने ये बोल दिया तो शायद इट माइट हैम्पर माई चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो क्या राइट थॉट है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, इनफैक्ट गेम थ्योरी का एक बहुत अच्छा केस है ये, विच इज एन एक्चुअल इंटरव्यू। डू द पैनल मेंबर्स नो दैट दिस इज अ क्वेश्चन दैट माइट गेट आस्क्ड टू यू? Yes. Do the students know that this is one of the questions that might get asked to them? Yes. Do the panel members know that students know? Yes. Do the students know that panel members know that students know? And so on. ये to and fro चलता जाएगा। हर किसी को सब कुछ पता है। पैनल मेंबर्स को ये पता है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स को भी पता है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, सबको सब कुछ पता है, फिर भी ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा जाता है ओवर द इयर्स। तो अंडरस्टैंड कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। They want to understand how serious you are when it comes to your MBA. उसके लिए they want to understand कि आपने अपने करियर के बारे में क्या सोच के रखा है in the next 15-20 years. You might say you don't have a lot of clarity because nobody has. Even the panel members they themselves would not know कि 5 साल बाद उनको इसी कॉलेज में प्रोफेसर बन के रहना है, या अर्ली रिटायरमेंट ले लेना है, या खुद का वेंचर स्टार्ट करना है, या कंसल्टिंग में जाना है, या कुछ और करना है। There is a chance that nobody might not know exactly what they are going to do with their lives in the next 5, 10, 15 years. But
Having said this, it talks a lot about how serious you are when you haven't even thought about it. So you are expected to answer this question on the lines that with my limited information, I have been able to understand that I am so and so kind of a person, and in the longer run of my career, I wish to pursue these kind of roles, take up these kind of activities. These are my current areas of interest, which are currently aligned with my long-term objective. But I feel there is a sense of gap, and to be able to bridge those gaps, I would want to pursue an MBA. तो अंडरस्टैंड लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बाद आज आप क्लैरिटी रखते हो कि नहीं, दैट इज व्हाट दे वांट टू असेस. नोबडी इज गोइंग टू चेक कि आपने जो इंटरव्यू में आंसर बोला था वो ही होना है क्या. एंड इट ऑल्सो डज नॉट मीन कि आप झूठ बोल रहे हो. वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी आज की जितनी लिमिटेड मेच्योरिटी है, लिमिटेड क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उसके साथ आपका इंटेंशन सही डायरेक्शन में है या नहीं. टू थिंक कि मैं 15 साल बाद अभी तो ये सोच के बैठा हूं, और जो आप सोच के बैठे हो क्या उसके लिए एमबीए रिक्वायर्ड है या बिना एमबीए के काम हो जाएगा. इफ यू फील that MBA is required to be able to achieve your long-term goal, then you're on the right track. Then you're thinking, then you're on the correct line of being a serious aspirant for pursuing your goal. तो अब वो सीरियसनेस या इंटेंशन कैसे चेक करेंगे? वाया क्लैरिटी. क्लैरिटी इन जनरल तो किसी को भी नहीं है, पर हम जितनी लिमिटेड क्लैरिटी है, क्या उसको करेक्ट तरीके से पोर्ट्रे कर पा रहे हैं? तो इट इज परफेक्टली फाइन to answer with the start. I have limited information, and with my limited information, I have decided for myself that in the 15 years of my time, I want to take up a role which impacts a lot of people in the company and beyond, where I'll take up activities in the management domain, leading a team of people, taking up more responsibilities, anticipating future challenges, and handling those responsibilities with a lot of aplomb and care. तो व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, एक क्लैरिटी का सेंस पता पड़ता है कि आप सीरियस हो, आप सोच के बैठे हो, रादर देन सेइंग दैट कल का ही नहीं पता, कल का ही नहीं सोचा है तो 15 साल बाद का क्या पता है. ये वाला एटीट्यूड वर्सेस द अदर एटीट्यूड, दे वांट पीपल विद अदर एटीट्यूड हु आर सीरियस इनफ टू टेक देमसेल्फ सीरियसली. तो अब आप 16-17 साल के नहीं हो, 15 साल के नहीं हो, दे डोंट वांट समवन हु हैज अ केयरलेस एटीट्यूड. इट्स ऑलवेज गुड टू बी केयर फ्री, but it is never a good idea to be careless. They don't want careless people. So अगर आप long term, medium term, short term, so long term would mean 15 years and beyond, 20 years, 25 years, 30 years, ये long term goal हो गया. What is medium term? Medium term typically is anywhere beyond 5 years to 10 years, 12 years, 15 years at best. और short term is the next immediate 5 years. तो अगले 5 साल जब short term की हम बात करेंगे, तो it includes your 2-year MBA, और उसके बाद के 3 साल in a startup or in a company or as someone who's going to start their own venture. तो अगले 3 साल आप जस्ट एमबीए पास आउट होने के बाद क्या करोगे? दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर शॉर्ट टर्म करियर गोल. तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, आई होप टाइमलाइंस क्लियर है. अब एक क्वेश्चन आता है, सर इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी स्पेसिफिक इन आवर करियर गोल? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड स्पेसिफिक मीन? आई वॉन्ट टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन गोल्डमैन सैक्स इन द शॉर्ट टर्म ऑफ माई करियर. तो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, कंपनी का नाम भी बता दिया. आई वॉन्ट टू बी अ कंसल्टेंट विद आइदर ऑफ मैकिन्जी, बेन, बीसीजी. तो एमबीबी में से किसी कंपनी में मुझे कंसल्टेंट का रोल प्ले करना है, स्पेसिफिकली बता दिया. आई वांट टू टेक अप ब्रांड मैनेजमेंट इन एन एफएमसीजी कंपनी लाइक ब्रिटानिया, आपने स्पेसिफिक आंसर बता दिया. आई वांट टू टेक अप एन ऑपरेशंस कंसल्टेंट का रोल एट अमेजॉन, आपने कंपनी का नाम बता दिया, रोल का नाम बता दिया. क्या इतना स्पेसिफिक आंसर आपके गोल में होना चाहिए व्हेन यू टॉक ऑफ शॉर्ट टर्म गोल और मीडियम टर्म गोल? इफ यू आर क्लियर, नथिंग लाइक इट. मतलब कोई बुराई नहीं है ऐसा आंसर शेयर करने में. अगर आपकी क्लैरिटी है, अगर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो कि आपको ये क्लैरिटी कहाँ से मिली, आपको क्या पता है कि एग्जैक्टली क्या रोल रहता है अमेजोन में ऑपरेशन स्पेशलिस्ट का, क्या आपको कंसल्टेंट के बारे में टिपिकल डे टू डे लाइफ पता है कि टिपिकल कंसल्टेंट्स की लाइफ कैसी है, what is the kind of job that they do, the kind of aptitude required to be able to execute those tasks successfully. क्या किसी कंसल्टेंट का प्रोजेक्ट समझा है कभी कि टिपिकली एक कंसल्टेंट किस तरह के प्रोजेक्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करते हैं? when they talk of solving problems, when you talk of concepts like guesstimates, are you aware? तो अगर आप ये explain कर पाओ that I have understood all this at a secondary level, I've done my primary as well as secondary research, I've understood these aspects, and currently with my skill set and my interests, I feel these are the areas that I'm aligned to and I'll want to get into that role perfectly fine. आपको एफएमसीजी का मतलब पता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब पता है, कंपैरिजन पता है, सेल्स एंड मार्केटिंग का डिफरेंस पता है, ब्रांड मैनेजमेंट में ब्रांड एज अ टर्म की डेफिनेशन क्या है, ब्रांड इमेज क्या है, ब्रांड पोजिशनिंग क्या है, बेसिक आइडिया है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई हैव
gone through these terms, I have a fair idea what these terms mean, and I have also fair idea of what the role entails. तो मुझे 3 साल बाद 4 साल बाद क्या रोल करना है मुझे क्लैरिटी है. आई ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट ब्रिटानिया. आई ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट डाबर. आई ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट आईटीसी. तो मुझे एफएमसीजी की ये 4-5 बड़ी कंपनीज के बारे में क्लैरिटी है. I've also talked to some of the seniors who are currently working in some of these firms. I've understood the kind of roles that they play, the kind of typical day-to-day life that they have, the kind of skills that are required to be able to do justice to those kind of roles, and whether my interests are aligned to that kind of a job. तो मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह के रोल में खुद को विजुअलाइज करना. If you have that kind of clarity, amazing. That's the ideal situation. But believe me, ये वाली लेवल की क्लैरिटी across functions, when we talk of functions, finance, marketing, operations, HR, systems, consulting across any of these domains, international business, rural marketing, you name it, there are so many different functions and specializations that you can talk about. And nowadays with AI, so generative AI and ML and whatnot, so there are different sub areas and there are niche areas that you need to search about, research about, and so on. It's very difficult for somebody to have absolute clarity. So majority of us would find ourselves in this situation जहाँ पे we'll feel that हमें इतनी clarity नहीं है, but हमें ये clarity है that I want to take up a more meaningful role where I'm able to manage a team of people with more responsibility and going to create a bigger impact. तो इस वाले पार्ट को क्विकली समझते हैं कि जब क्लैरिटी स्पेसिफिक लेवल पे नहीं है तो जेनेरिक लेवल पे आंसर दे सकते हैं कि आप बिल्कुल दे सकते हैं. और वो आंसर किस डायरेक्शन में किस तरह देना है तो उसके लिए मैं एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर द सेम स्टोरी इन योर आंसर्स, बट फ्रेम योर आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरीज आई एम एक्सप्लेनिंग, सो दैट यू आर एबल टू जस्टिफाई कि इवन जेनेरिक रोल की क्लैरिटी है मुझे. जनरल मैनेजमेंट क्या है इसकी क्लैरिटी है. फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में डिसाइड ऑन स्पेशलाइजेशन. बट टू बी एबल टू रीच दैट लॉन्ग टर्म गोल 15 years लेटर, आई स्टिल नीड टू परस्यू माई एमबीए. ये जस्टिफिकेशन आप बहुत अच्छे से दे पाओगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंगफुल रोल, इम्पैक्ट वाला पार्ट, टेकिंग मोर चैलेंजेस, विजुअलाइजिंग सम इम्पैक्ट्स इन फ्यूचर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसका क्या मतलब है. जब आप स्ट्रेट अवे किसी ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने जाते हो, यू आर टिपिकली लिमिटेड टू वन डोमेन. सपोज यू आर एन इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस और आपका कोर रोल कंप्यूटर साइंस की कोडिंग रिलेटेड ही है. तो अंडरस्टैंड, यू आर नॉट रियली बॉदर्ड कि एचआर कैसे फंक्शन कर रहा है. यू आर नॉट रियली बॉदर्ड कि जो आपकी कंपनी है, लेट्स अज्यूम सम आईटी कंपनी, लेट्स अज्यूम टीसीएस, इन्फोसिस, केपजेमिनी, कॉग्निजेंट, व्हाटएवर. तो आप कुछ किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हो और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग फंक्शन कैसे काम कर रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है. कॉर्पोरेट फाइनेंस से काम होगी जो फाइनेंशियल से डील करेगी. देयर विल बी अ सीएफओ इन योर कंपनी, यू हैव नो आइडिया व्हाट द सीएफओ डज. देयर आर डिफरेंट फंक्शंस एंड यू हैव नो क्लैरिटी कि वो डिफरेंट फंक्शंस कैसे साथ में आ रहे हैं और बिजनेस को कैसे आगे ले जा रहे हैं. So when you take up a job without an MBA, you're restricted in one domain, which is a problem when you want to take up senior roles. ये clarity अभी आपको है, even if you have not worked, and there is no harm in saying this in the interview as well, that going ahead in life, taking up senior roles, I will want to bridge this gap of understanding how different functions of business work together to produce the final result that we all see. तो फाइनेंस के बेसिक फंक्शंस, मार्केटिंग के फंक्शंस, ऑपरेशंस के फंक्शंस, एचआर के फंक्शंस, इसकी क्लैरिटी नहीं है. और ये क्लैरिटी चाहिए कैसे मिलेगी, एमबीए करके मिलेगी. क्लैरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि सीनियर रोल्स जब मिलेंगे तब somebody should know basic understanding of all the functions to be able to take a informed decision. और ये अभी नहीं हो पा रहा है. सो दैट इज वन रीजन व्हाई आई वांट टू परस्यू एमबीए. और लॉन्ग रन में मुझे सीनियर लीडरशिप रोल्स चाहिए. अब सीनियर लीडरशिप रोल्स या इम्पैक्ट वाले पार्ट पे आते हैं. थिंक ऑफ अगर हम हायरार्की या टियर की बात करें इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट और मीनिंग, थिंक ऑफ अ रोल ऑफ एन ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय का रोल क्या है, ही हैज टू गेट फोटोकॉपीज डन. सबकी जहां भी रिक्वायरमेंट है फोटोकॉपीज की, मेकिंग श्योर की फोटोकॉपीज बहुत टाइम पे हो रही है, प्रिंट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है. अगर फोटोकॉपी मशीन में इंक खत्म हो गई है तो ही हैज टू कॉल द वेंडर, गेट द इंक रिप्लेस, making sure tea, coffee, snacks are available at appropriate times for people, making sure the glasses are spick and span, making sure things are working really well in terms of his job description. इमेजिन कोई ऑफिस बॉय अपना 110% दे रहा है प्रोवर्बियली. मैथमेटिकली तो पॉसिबल नहीं है बट प्रोवर्बियली ऑफिस बॉय इज गिविंग इज 110%. एकदम सब चीज परफेक्ट है. सुबह 7 बजे ऑफिस खोलना है, 6:55 पे आपको हर दिन ऑफिस खुला मिलेगा. एंड यू डोंट इवन नीड टू आस्क him to get things done. He will anticipate कि आपको इस चीज की जरूरत लगेगी और वो पहले से करके देता है. He's doing his job brilliantly. No work is big or small.
हर काम का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी और शिद्दत से कर रहा है। अंडरस्टैंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना डेल्टा क्रिएट होगा उस एक ऑफिस बॉय के अपने आउट ऑफ द वे जाके काम करने से। विल से सम इम्पैक्ट, कल्चर अच्छा रहेगा, पीपल मे बी हैप्पी बिकॉज ऑफ द वर्क दैट ही इज डूइंग, ओवरऑल एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम अच्छा बना रहेगा। बट वी आर नॉट रियली श्योर कि कितना बड़ा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, क्लाइंट्स, रेवेन्यू, इमेज इन सब पे होगा। वी डोंट नो। जनरली विल अज्यूम कि बहुत कम डेल्टा क्रिएट होगा। अब इमेजिन द सेम थिंग being done, same thing in the sense, the same extra effort being put by a senior marketing manager who's going out of his way। कंपनी ने या सीनियर रिपोर्टिंग मैनेजर ने टास्क दिए हुए हैं कि आपको एक्स वाई जी 8 चीजें करनी है, ही इज गोइंग आउट ऑफ हिज वे एंड यू नो डूइंग 2 more tasks एक्स्ट्रा। संडे काम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा है, कॉम्प ऑफ भी नहीं मिल रहा है, बट वो संडे को भी काम कर रहा है, कॉल पे है, सो दैट मंडे से जो भी टारगेट्स हैं वो अचीव हो पाए। टारगेट 2 लाख का था, उसने 2 लाख 20 कर लिया, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी नहीं है, फिर भी कर रहा है। तो imagine when a senior marketing manager is going beyond his role to be able to do a lot of impact or create a lot of impact, कितना बड़ा चेंज आएगा रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में, कंपनी की इमेज में, इम्पैक्ट में। और ये एक पर्सन की बात करें, इमेजिन लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस एंड देन इमेजिन द सेम थिंग बीइंग डन बाय सीएक्सओस। तो जब आप इम्पैक्ट की बात करते हो तो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है विथ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी व्हेन यू थिंक ऑफ अ टिपिकल रोल की सीनियरिटी डिसाइड्स द लेवल ऑफ इम्पैक्ट एंड विच इज वाई समटाइम्स यू माइट फील सीएक्सओस तो अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे रहते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट करते हैं। ए को ये टास्क दे दिया, बी को ये टास्क दे दिया, हफ्ते भर बाद पूछ लेते हैं ए ने कितना करा, बी ने कितना करा, क्या ही हो रहा है उससे। उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है एट द बैक एंड। दीज आर द पीपल हु आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को अगर कुछ नहीं हुआ तो नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन दैट ऑफिस बॉय कि तुमने चाहे ठंडी पिलाई थी इसलिए कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। Understand this part, that the ultimate responsibility will be those of the people in senior leadership positions, which is what you're vying for when you're thinking of an MBA. Now, this is a generic level clarity which you are expected to have when you give a generic answer saying that I want to pursue MBA in the long run and take up senior leadership positions. I'll be able to create a bigger impact. I'll be leading more number of people. There will be bigger challenges that I'll be handling, which create a more meaningful impact on the revenues of the company or the profitability of the company or some other things। तो ये पैरामीटर्स के बारे में आप बोल पाओ। तो जब आप ज्यादा लोगों को लीड करोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, और जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले से थी ही आपकी। इस तरह के काम करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। यू विल एंजॉय डूइंग दिस टास्क व्हेन यू आर एबल टू अचीव दोस टारगेट्स, व्हेन यू आर एबल टू go beyond what is expected of your typical job role। You will look forward to each day कि अच्छा आज हम ये करते हैं, next Monday से we are going to align these things। You're super excited to portray those kind of roles because this is what you wanted to do। To be able to do this, you need an MBA। तो लॉन्ग टर्म गोल जेनरिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक हो सकता है, आइडियल, नथिंग लाइक इट, बट बी प्रिपेयर टू आंसर सम क्वेश्चंस। दैट्स द ओनली क्वेश्चन दैट आई हैव, कि आपको आंसर करने पड़ सकते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी, अबाउट द रोल। फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग है तो बी श्योर की गेस्टिमेट तो पूछ ही लेंगे वो इंटरव्यू में, अगर आप कंसल्टिंग बोलते हो। गेस्टिमेट नहीं पता है, प्लीज टाइप इन द कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन गेस्टिमेट्स क्या है। वी माइट रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन गेस्टिमेट्स इफ रिक्वायर्ड। कोई भी ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है, इफ यू फील दैट देयर इज अ नीड for us to explain some parts, please share your feedback in the comment section। We'll get back to you very promptly and we might have some sessions on those lines। So career goal का part clear है, why MBA? This question is based on what you share here, irrespective whether they ask this question or not। Why MBA will indirectly be always linked to your long term goal। तो लॉन्ग टर्म गोल भले ही वो पूछें इंटरव्यू में या ना पूछें, आपको अपने लेवल पे प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है why MBA career goal rated, which is your ability to convince the panel that you are thinking in the right direction। They might offer some alternate, ऐसा मत करो, MBA मत करो, MS कर लो, BTech कराए, MTech कर लो, आप कुछ और कर लो, अभी जॉब क्यों नहीं कर लेते, इतना अच्छा पैकेज है, 15 लाख का तो पैकेज लग ही गया है, यहाँ पे कितना मिलना है, 20 22 25, क्यों कर रहे हो MBA। They might have different ways to divert and question and understand your clarity कि MBA कर ही क्यों रहे हो। इसके अलावा बहुत अच्छे ऑप्शन है, शायद तुमको पता नहीं है, आई एम मोर एक्सपीरियंस, लेट मी गाइड यू। इस तरह का उनका इंटेंट हो सकता है टू चेक कि आपकी लेवल ऑफ क्लैरिटी क्या है।
एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू कन्विंस द पैनल मेंबर्स दैट व्हाट यू आर थिंकिंग इज इन द राइट डायरेक्शन. Now, the first, and this is typically a negotiation, and it is said that the first step in being a good negotiator is to be able to convince your own self. आप नेगोशिएशन कभी किसी के साथ भी करो, आप नेगोशिएशन नहीं जीत पाओगे अगर आप पहले से खुद कन्विंस नहीं हो. दैट नेगोशिएशन मे बी एट अ फॉर्मल लेवल और इट माइट बी इवन एट अ पर्सनल लेवल. इट माइट बी अबाउट लव मैरिज, कन्विंसिंग योर टू बी स्पाउस, कन्विंसिंग योर इन लॉज, कन्विंसिंग एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड. अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो जो आप बोलने जा रहे हो, तो सामने वाला कन्विंस होगा ही नहीं, ये श्योर है. देयर इज अ चांस कि आप खुद कन्विंस हो फिर भी सामने वाला कन्विंस नहीं हो रहा है. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. बट अगर आप पहले से खुद ही कन्विंस नहीं हो, देन बी रेस्ट एश्योर्ड कि सामने वाला तो कन्विंस होने ही नहीं वाला. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू योरसेल्फ एक्सेप्ट that this is a long term goal that I genuinely believe in and I have the right reasons to believe so. Same is the case with why MBA. You should be absolutely clear in your head कि आपको MBA क्यों करना है, और अगर करना है तो उसका एक नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस कॉलेज, इस कॉलेज से ही क्यों करना है. यू शुड बी एबल टू कन्विंस योर ओन सेल्फ. कई बार ऐसा होता है ना, आई एम प्रीटी श्योर जब हम कुछ चीजें सोचते हैं तो हम खुद ही डाइसी देते हैं कि सर मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि मुझे इस कॉलेज से करना भी है नहीं. बिलीव मी, ये बहुत इजीली रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके इंटरव्यू में. सबकॉन्शियसली यू विल नॉट इवन नो दैट यू हैव कन्वेड दिस मैसेज कि आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि इस कॉलेज से एमबीए करना है नहीं करना है. बिफोर यू अपीयर फॉर एनी मॉक इंटरव्यू, इवन फॉरगेट द एक्चुअल इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में आने के पहले कन्विंस योरसेल्फ दैट दिस इज द कॉलेज दैट आई वांट टू स्टडी इन, दिस इज माय करियर प्लान, मुझे लॉन्ग टर्म में यही करना है. और जब ये लेवल की क्लैरिटी से आप खुद को कन्विंस कर लोगे, इट विल बिकम मच मच easier for you to convince others, because a lot of questions that might come in your head, if you're able to satisfy those questions, if you're able to satisfy your own self कि अच्छा मैं अगर ये बोलूंगा तो उनको तो ये ऐसा लगेगा, कई बार क्वेश्चन आएंगे अपने आप. तो अगर आप उन क्वेश्चंस को सेकंड लेवल की क्रॉस क्वेश्चनिंग, थर्ड लेवल की क्रॉस क्वेश्चनिंग में समझा पाते हो खुद को, तो देन इंटरव्यू स्टेज में आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत भी पड़ेगी. यू विल साउंड सो कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव दैट इट विल हार्डली मैटर कि सेकंड लेवल की क्रॉस क्वेश्चनिंग की जरूरत ही पड़े. ऐसा हो जाएगा कुछ केसेस में कि वो क्वेश्चन ही ना करे. वो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कन्विक्शन, असर्टिवनेस, ये एडजेक्टिव्स कैसे आ पाएंगे जब आप खुद के साथ बहुत ज्यादा बातें करोगे, अपने आंसर्स लिखोगे, उनको पढ़ोगे, एक एज एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर किसी से इवैल्यूएट करवाओगे या खुद इवैल्यूएट करोगे पढ़ के कि क्या ये ठीक लग रहा है, एम आई एबल टू कन्विंस माई ओन सेल्फ, यस ग्रेट, आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट सेम इन फ्रंट ऑफ द पैनल. तो ये वाई दिस कॉलेज, अगेन वाई दिस कॉलेज के लिए कैसे सोचें, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर वाई दिस कॉलेज में क्या हमें उस कॉलेज की तारीफ करनी है. तो यस, इन अ वे कॉलेज की तारीफ तो करनी है, बिकॉज कॉलेज जाना चाहते हो, आपका ड्रीम है कि उस कॉलेज में एडमिशन लो, तो कॉलेज की एक लेवल पे तारीफ करिए. बट अंडरस्टैंड कि वाई दिस कॉलेज में व्हाट इज इट दैट दे आर ट्राइंग टू असेस, दे आर ट्राइंग टू असेस योर इंटरेस्ट. थिंक ऑफ इट दिस वे, दे हैव अ कोर ऑफरिंग, उनका 2 ईयर का रेसिडेंशियल प्रोग्राम इज योर व्हाट यू आर टारगेटिंग, वो उनका फ्लैगशिप कोर्स है, बट दे आर ऑल्सो सेलिंग दैट कोर्स. थिंक ऑफ इट दिस वे, वो 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख जो भी कुछ फीस है, 15 लाख, वो फीस आपसे ले रहे हैं. So there is a particular product or service offering that they have. Think of it from a marketing perspective. They are selling that course. They are charging a particular fees. And then they are asking you, why do you want to be a part of this? ये वाला कोर्स क्यों खरीदना चाहते हो 25 लाख में? And then they want an answer from you. अब जब आप वाई दिस कॉलेज का आंसर देखो तो वो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग लेके आ रहे हैं. आपको एक पर्टिकुलर गैप अपनी प्रोफाइल में समझ में आ रही है. यू वांट टू ब्रिज दैट गैप, और आपको लग रहा है कि ये गैप ब्रिज होगी जब आप उनका कोर्स करोगे. उनका ये ऑफरिंग है कि अगर हम ये कोर्स देंगे तो हम लोगों की गैप्स फुलफिल कर सकते हैं. इफ दिस मिक्सेस वेल टुगेदर, इफ देयर इज सिनर्जी, इफ दिस इज अ राइट फिट, बैंग ऑन, आपका सिलेक्शन पक्का है. बिकॉज आपको भी वही नीड है, आपकी प्रोफाइल में वही गैप है जो वो फुलफिल करने वाले हैं उनके 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में. तो अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट दे आर ऑफरिंग, उनका कोर ऑफरिंग क्या है, 2 ईयर का एमबीए प्रोग्राम, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है वो सोचो. तो देन यू विल टॉक ऑफ व्हाट द नंबर वन थिंग दैट एनी कॉलेज हैज टू ऑफर इज द 2 ईयर रेसिडेंशियल प्रोग्राम विच इज फुल ऑफ लर्निंग. तो सबसे पहला पार्ट आप फोकस करोगे लर्निंग के ऊपर, विच विल बी टिपिकली बैक्ड बाय करिकुलम. तो उनका 2 साल का करिकुलम क्या है, किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और ये सारा सोर्स कहाँ मिलेगा आपको टू प्रिपेयर एंड स्टडी. इट विल बी देयर ब्रोशर. ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, खुद का प्राइमरी रिसर्च करो, प्लीज बने बनाए आंसर चैट जीपीटी में मत जाओ. डू योर ओन रिसर्च, क्रिएट योर ओन आंसर्स. इट विल एड अ लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.
तो जब हम बात करेंगे वाई दिस कॉलेज वाले पार्ट की, या जब हम बात करेंगे इस तरह के आंसर्स की कि आप पर्सनलाइज आंसर कैसे दोगे, तो आप ये सोचोगे कि राइट फिट क्या हो। थिंक ऑफ एनी अदर एरिया, थिंक ऑफ लेट्स से स्मार्टफोन। आपको स्मार्ट, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर यूजिंग अ स्मार्टफोन ऑफ योर ओन चॉइस। ऑफ योर ओन चॉइस मतलब किसी ने जबरदस्ती आपको दिलवा दिया है इसलिए आप यूज कर रहे हो, वैसा तो होता नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वुड हैव डिस्कस दिस विद पेरेंट्स फ्रेंड्स कि मुझे ये वाला स्मार्टफोन खरीदना है। हाउ डू यू कंपेयर एंड डिसाइड यही खरीदना है? डू द सेम थिंग फॉर दिस कॉलेज। जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आपने अपने लेवल पर रिसर्च कर ली है कि देयर वर 10 ऑप्शंस दैट आई हैड, दिस इज वन ऑप्शन दैट आई एम गोइंग टू परस्यू? इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी, जब आप स्मार्टफोन खरीदने में खुद को प्रायोरिटी देते हो कि दिस इज व्हाट आई विल वांट टू हैव, और देयर माइट बी केसेस सर आई वांटेड आईफोन 15 प्रो मैक्स बट अफोर्ड नहीं कर सकते, सेम इज द केस हियर। चाहते तो आई एम अहमदाबाद मिल सकता था बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे बिकॉज कैट का स्कोर नहीं है, या वट एवर अदर रीजन, शॉर्टलिस्ट ही नहीं आया। सो अंडरस्टैंड कि वो चीजें यहां भी होंगी, बट अगर आप वहां रिसर्च करके अपना स्मार्टफोन जो 80,000 का है, 1 लाख का है, 1.25 लाख का है, 40,000 का है, 10,000 का है, 5,000 के फोन के लिए आप इतनी रिसर्च कर सकते हो कि आपको उसका प्रोसेसर भी पता है कि स्नैपड्रैगन है या मीडिया टेक है, रैम कितनी है। इनफैक्ट बहुत लोग तो उनकी शीट्स पे जाते हैं, टेक्निकल शीट्स के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग प्रोसेसर्स। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं कि प्रोसेसर का एक्चुअल परफॉर्मेंस रियल लाइफ में कैसा हो रहा है, और पर्टिकुलर गेम खेलने में इसकी स्पीड कैसी आ रही है ना, फ्रेम्स कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो पा रही हैं व्हेन यू आर लुकिंग एट स्क्रीन, बेजल कैसा है, मल्टीपल थिंग्स यू टेक इनटू अकाउंट। कैमरा बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, लॉन्जिविटी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। आई डोंट नो कितने और पैरामीटर्स आप सोचते होंगे, 1, 10, 15, 20, 1 लाख, 2 लाख, आई डोंट नो किस लेवल तक के आप स्मार्टफोन्स यूज करें, बट उसके लिए इतनी रिसर्च करते हो तो वहां 30 lakhs पे करने वाले हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में, उसकी कितनी रिसर्च करी आपने? जीरो। सर पता था कि अच्छा है एमबीए करना है, चले गए, हैड नो आइडिया कि वो एस्टैब्लिश कब हुआ, उनके करंट डीन कौन है, किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, फैकल्टी मेंबर्स का साइज कितना बड़ा है, फैकल्टी मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस किस तरह के हैं। ये चीजें याद नहीं करनी है, बट दिस विल शो अ लेवल ऑफ इंटरेस्ट। इफ आई आस्क यू कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा, एंड यू से फुटबॉल, एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लब्स एंड देयर मैनेजर, यू विल हैव 10 डिफरेंट ट्रिवियाज टू शेयर कि ऐसा था, ये क्या शो कर रहा है, ये एक ही चीज शो कर रहा है, वो है इंटरेस्ट। और जब आपसे वाई दिस कॉलेज पूछ रहे हैं और पूछा है, एक दो अलमनाई बता दें फेमस जो इस कॉलेज के एनुअल से, नहीं सर आई सर्च ऑन गूगल बट अभी याद नहीं है। अंडरस्टैंड किस लेवल का इंटरेस्ट शो हो रहा है आपका। आपको अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पसंद है, आर्सेनल पसंद है, तो यू आर एबल टू टॉक अ लॉट अबाउट देम। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो यू कैन शेयर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विराट कोहली और उसका सन साइन और मून साइन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी और ट्रिविया बता सकते हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। बट यहाँ कॉलेज में जब पूछ रहे हैं कि कॉलेज का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या था, यू हैव नो आंसर। सर आई रेड इट ऑन द वेबसाइट बट आई थिंक, आई गेस इट वुड बी इन द 80s, 1980s में कभी चालू हुआ था। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलेज। not the right way to respond. To understand this part, why this college वाले answer में, it's extremely important for you to do your own research. Curriculum is one thing. पूरा 2 साल का experience जो वो offer कर रहे हैं core offering में, it can include their famous alumni, it can include the subjects that they are going to teach, it can include the extra activities, the summer internships, the winter activities, the projects. There are capstone projects. Understand what do you mean by capstone projects? There are different student driven clubs. उन clubs के specific उस college के नाम क्या हैं? कैन यू गेट इन टच विद वन ऑफ द क्लब मेंबर स्टूडेंट बॉडीज में से, जिनके साथ आप बात करके समझ पाओ कि किस तरह की एक्टिविटीज क्लब में होती है, एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दैट। देन देयर आर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, देयर आर स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजास, देयर आर मैनेजमेंट फेस्टिवल्स, देयर आर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स, व्हाट नॉट। You've gone through all this, and this is the reason that you want to pursue an MBA from this college. Same चीज, स्मार्टफोन ये वाला क्यों खरीदा, आप 10 रीजन गिना सकते हो, राइट? इसका कैमरा अच्छा है, इसका प्रोसेसर अच्छा है, सेम चीज, इसका क्या अच्छा है, कॉलेज का अलमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, यहाँ के स्टूडेंट्स एंड पीयर बहुत अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज जो होती हैं बहुत अच्छी है, समर इंटर्नशिप्स की प्रोफाइल बहुत अच्छी मिलती है, एंड नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव्स अबाउट दैट स्पेसिफिक कॉलेज। तो स्नैपड्रैगन का कौन सा वर्जन है प्रोसेसर का, ये भी आपको स्मार्टफोन का पता है, यहां पर भी आप स्पेसिफिक क्लब का नाम याद करके जाओगे। दिस विल शो इंटरेस्ट कि आपने उस लेवल की रिसर्च करी है, यू आर रियली इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग दिस प्रोग्राम। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सिमिलरली, व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स इन ग्रेजुएशन, आपने हो सकता है बीई बीटेक करा हो, आपने बीबीए करा हो, बीकॉम करा हो, आपने बीए करा हो, आपने बीएससी करा हो, बीएससी में फर्दर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करा हो, बीएससी मैथ्स हो, बीएससी फिजिक्स हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो,
इट कुड बी एनी डिफरेंट स्ट्रीम, यू माइट हैव परस्यूड एलएलबी। सो बहुत अलग अलग कोर्सेज आपने अपने ग्रेजुएशन में करे होंगे। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड यू चूज व्हाट यू चोज इन योर ग्रेजुएशन? व्हाई बीई, व्हाई बीकॉम, व्हाई बीबी, आपने वो चूज ही क्यों करा? अब इसमें दो तरह के रिस्पॉन्सेज है। स्टूडेंट समटाइम्स यू फील, सर मेरा डिसीजन तो था ही नहीं, सब लोग बी कर रहे थे, मैंने भी बी करने का सोच लिया। सब लोग हमारे इसमें कॉमर्स ले रहे थे, बी कॉम वॉज, मतलब हमारी ट्वेल्थ की जो बैच है 50 लोगों की, उसमें से 25 लोगों ने तो मेरे कॉलेज से बी कॉम करा है। तो वैसे ही था कि जैसे 10th के बाद 11th आता है, वैसे 12th के बाद बी कॉम आना था, ये पता ही था। तो देयर वाज नॉट इवन अ बिग डिस्कशन दैट हैपेंड। पेरेंट्स ने बोला मैथ्स तुम पढ़ नहीं पाओगे, मुझे भी लगता था कि मैथ्स में स्कोर अच्छे नहीं है, तो कॉमर्स ले लिया था। और फिर these are things that might have happened to you in real life, जो आपका परसेप्शन अब बन गया है कि ऐसा हुआ था। अब इसे फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट कैसे करना है, सो दैट नाउ यू शोकेस अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी इन द वे यू प्रेजेंट थिंग्स। तो ऐसा हो सकता है कुछ रेयर केसेस में कि आपका क्लियर डिसीजन था, यू हैड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी दैट आई वांटेड टू परस्यू इंजीनियरिंग बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट एरिया, आई हैड गोल्स एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट वर अलाइन टू व्हाट इंजीनियरिंग ऑफर्स, और हमने इंजीनियरिंग कर लिया या बीकॉम कर लिया या बीबीए कर लिया या सीए की एग्जाम दे दी। ये क्लैरिटी अगर थी और उन गोल्स को फुलफिल करा है, ग्रेट, आइडियल सिचुएशन। बट फॉर मोस्ट ऑफ अस मियर मॉर्टल्स ऐसा होगा कि सर ट्वेल्थ का डिसीजन तो हो गया बिकॉज भैया ने इंजीनियरिंग करा था, तो मेरा भी इंजीनियरिंग करने का ही थॉट बन गया। पेरेंट्स, किसका डिसीजन था? पापा ने बोल दिया बेटा तू इंजीनियर बनेगा, तो पापा ने बोल दिया, तो आई हैड टू परस्यू engineering. There is this particular thought that you might have where you might feel that it was not your decision, it was somebody else's decision that you had to follow, and you took up that particular course. तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए why this particular course that you chose in graduation, आपको बहुत फॉर्मल तरीके से ये शेयर करना है that at that point in time I had limited information, I did not have a lot of maturity. It was typically a group decision where everybody from my family, friends, relatives were involved. There was a lot of brainstorming that was done. After that brainstorming, everybody felt, including me, that BBA is the right field for me. And therefore, we took that decision. But having spent first, second year, I realized that BBA will not be sufficient for me. I need to pursue further education. And therefore, I thought of pursuing MBA. This is the right way to respond. अच्छा, इसमें क्या हम ब्लेम कर सकते हैं जब फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स के क्वेश्चन आते हैं या बीबीए रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थॉट कि सर हमारे कॉलेज में तो अटेंडेंस कंपलसरी थी नहीं, हमारे कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी थी ही नहीं, मैं तो कभी कॉलेज ही नहीं गया, और कॉलेज में पढ़ाते भी नहीं है, प्रोफेसर्स ने आज तक कभी अच्छे से पढ़ाया नहीं, और कॉलेज में अटेंडेंस भी कंपलसरी नहीं थी, इसलिए मुझे इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। पापा ने बोल दिया था इंजीनियरिंग करना है, तो मेरा वैसे ही इंटरेस्ट नहीं था, मैंने तो कर लिया बिकॉज पापा को खुश करना था, तो मुझे सब्जेक्ट्स नहीं आते। Irrespective of whether it was a group decision, you did not have a lot of maturity, you were involved in that. What was the primary goal you were left with when you joined that particular college? आप सोच के देखो आपका प्राइमरी गोल क्या था? प्राइमरी गोल था कि कॉलेज से जो टीम आईटी कानपुर स्पोर्ट्स मीट में जाने वाली है वहां पे फर्स्ट प्राइज लेके आओगे टेबल टेनिस में, क्या ये प्राइमरी गोल था? नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर्स हॉबीज परस्यू करना था, ये गोल था? नहीं। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल while you were pursuing your graduation? The primary goal was to excel in academics. एक पर्टिकुलर करिकुलम है, उसको गो थ्रू करोगे, मार्क्स मिलेंगे, एग्जाम होगी, फाइनली यू विल गेट ग्रेडेड, और आपका प्राइमरी गोल था टू गेट गुड मार्क्स, टू लर्न, एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली गेट गुड मार्क्स। बट ये वाली चीज जब हम कोर्स रिलेटेड आएंगे तो हम कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। Why will not we blame? Because ultimately it was our decision. Think of it this way, क्या प्रोफेसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी लर्निंग के लिए? वॉज इट देयर डिसीजन कि आप हमारे कॉलेज में आओ, हम गारंटी लेते हैं हम पढ़ाएंगे? नो। इवन ड्यूरिंग एमबीए बीबीए, अंडरस्टैंड दिस इज योर ओन डिसीजन। आपकी इच्छा थी कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू लर्न। इफ द क्लास वाज नॉट हैपनिंग, यू कुड हैव गॉन टू अनदर क्लास, यू कुड हैव गॉन टू अनदर प्रोफेसर। कॉलेज में नहीं हो रहा, यू कुड हैव टॉक टू सीनियर, सीनियर से नहीं हो रहा, यू कुड हैव लर्न ऑनलाइन ऑन योर ओन, यू कुड हैव बॉट some more books and tried reading. You could have taken extra help or support from outside. आपको अगर सीखना था तो believe me, if you genuinely want to learn something, there is nobody, and I repeat, there is nobody in this world who can stop you from learning what you wish to learn. There are enough resources available, enough help available for you to learn, and then you go and say कि प्रोफेसर ने नहीं पढ़ा इसलिए मुझे आता नहीं है, क्लास तो होती नहीं थी। तो भाई प्रोफेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
to make sure that you go out of your way and make sure that you understand that subject well, जो हमने नहीं करी, and therefore will portray it this way that I accept it honestly that it was a mistake on my part not to take my subjects very very seriously. But now I have learned, I've had more maturity now, and I understand that it is an important area. And if you look at my last few subjects in the semesters, I've worked really hard to get a good grade. Although I did not achieve as per my expectations, but I've performed well compared to or relative to what I've performed in the first and second year. They also understand कि जब आप fresh college में first year में जाते हो, तो there might be n number of different distractions. Everybody goes through those. तो हो सकता है कि उस टाइम पे आप distracted हो गए, you were not able to focus on your studies because of a number of different things. But now, when you're thinking of pursuing an MBA from a reputed college, it's extremely important for you to showcase that level of maturity and clarity. तो ये वाला पार्ट वाई दिस कोर्स में आप ब्लेम नहीं करोगे. अच्छा, इसमें भी अब एक काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा एमबीए में भी तो ऐसे ही हो रहा होगा, आपके पापा ने बोल दिया एमबीए करना है इसलिए आप एमबीए कर रहे हो. तो then you'll say, sir, obviously there will be a lot of discussion that happened at the back end, family, friends, everybody was involved, but now the degree of influence of others is very less compared to my own decision making. Earlier, at the age of 16 years, 17 years, the degree of influence of everybody else was a lot more. I was confused. Now I am not. I'm taking help of others rather than others completely guiding me. There's a big difference. This is my decision, my call. I have that clarity now. Obviously, I've taken help from family, friends, peers, professors, anybody who could guide me. I've gone to other support areas as well, including social media. But now I'm matured enough to take that call. So MBA is my decision. Degree of influence कम हो गया है. The way you frame it will be dependent on your understanding कि this is what they are expecting. कि अब आप 10वीं 12वीं के बच्चे नहीं हो. You are an adult and you are expected to behave like an adult. ठीक. तो why this course in graduation के बाद why not some other course? Again they might want to deviate कि MBA क्यों कर रहे हो, बीटेक कर लिया तो अब एमटेक कर लो, बीए कर लिया तो एमए कर लो. यू विल नीड टू प्रिपेयर एंड रिसर्च कि उस डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़े तो आपकी करियर ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, लॉन्ग टर्म गोल के साथ वो अलाइन नहीं है, और करंटली एमबीए के पाथ के साथ यू विल बी एबल टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल विच इज द आइडिया बिहाइंड यू परस्यूइंग योर टिपिकल एमबीए कोर्स. ठीक है. सो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देन विल हैव अनदर पार्ट on the interview, MBA interview questions and answers wali series. Last question is your dream job and dream company. The first thing that you're expected to do is to search what are the companies that come on campus for the college that you're applying for. उसमें कौन कौन सी companies आती हैं और वो किस तरह का रोल देती है. ये कहाँ मिलेगा? Placement report पे. Almost every college will give a detailed placement report. In the case of some of the IIMs, you also get audited reports. IPRS is the Indian Placement Reporting Standards agency that audits placement reports of some of the top IIMs, including IIM Ahmedabad, IIM Nagpur, etc. तो आप IPRS की वेबसाइट पे जा सकते हो, IIMs की वेबसाइट पे जा सकते हो, उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो. गो थ्रू ग्रेट डिटेल द काइंड ऑफ कंपनीज दैट कम एंड द काइंड ऑफ रोल्स दैट दे ऑफर. रिमेंबर 5-6 कंपनीज, रिमेंबर 5-6 रोल्स. एंड हैविंग शेयर्ड दिस इन द इंटरव्यू, जब वो आपसे पूछे कि ड्रीम कंपनी या ड्रीम जॉब कौन सा है, out of that share that this company, this kind of role is something that really excites you, but with a caution. You will say that at this point you have limited knowledge. I'll be open to taking up any interesting role across the spectrum of companies that visit campus, and I'm not restricting myself to just one company because ये बहुत narrow है. Practically भी बहुत difficult है सोच पाना कि आप एक ड्रीम कंपनी दिमाग में लेके चलो और उसी में प्लेसमेंट भी हो जाए, उसी में वही रोल मिल जाए जो आपको चाहिए. इतना स्पेसिफिक लाइफ में होना बहुत डिफिकल्ट है. एंड देयरफॉर यू आर समवन हु इज ओपन टू मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल रोल्स, बट यू आर वेल प्रिपेयर्ड. कंपेयर दिस विद एन आंसर, सर आई डोंट नो विच कंपनी आई वर्क फॉर. अच्छा, टेल अस सम कंपनीज जो प्लेसमेंट्स के लिए आती है. नहीं सर, मे बी आईटीसी, मे बी डाबर, मे बी आई डोंट नो. ये वाला काइंड ऑफ रोल्स, नो सर आई डोंट नो. ये नो बोलने की जगह अगर आप अपने लेवल पे 5-6 कंपनीज, 5-6 रोल्स बता दो एंड देन से दैट आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ, आई विल बी हैप्पी टू गेट इनटू एनी ऑफ दीज रोल्स इन जनरल, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. ठीक. So I think that's all from my side as far as this first part of the session on MBA questions and answers are concerned. I deliberately made it a point not to share some standard answers, but I've given you enough guidance material to create answers on your own. अगर आप वो answers खुद से बना पाते हो, try and test them in the mock interview stage. Believe me, अगर आपको वो clarity आ जाती है कि answers किस तरीके से frame करने हैं,
Your mock interviews will go very smoothly, and your actual interview would definitely be a convert. So, all right, with this, I'll take your leave. Ciao.